کہ coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. سب کا سیکرٹ ہے کہ اتنے سالوں سے ہمیشہ فرسٹ پرائز تمہیں ملتا ہے. Thank you, ma'am. Harmony begins when we choose understanding over judgment and love over division. I now call upon Mr. Sharfuddin B.S. for the presidential address. He is a multilingual scholar from India, currently based in Kuwait, with rich experience in literature, journalism, teaching, and public speaking. He has translated several works into Kannada, including parts of the Holy Quran. A freelance journalist and corporate professional, he also serves as a visiting faculty of management studies. His talks have been featured across India and Gulf, including on television and radio. Through his work, he continues to contribute to education, literature, and social service. It's my honor to invite our respected Sharfuddin B.S. for the presidential address. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Respected, distinguished guests of today, Father Daniel Pereira, Swamini Gopikananda Saraswati, Mrs. Haneen Khan, Ismail Sahab, and Nisar Sahab. I have been told to speak in Hindustani language because everybody can understand it. Let me ask you a question. How many people are comfortable in English? I think majority, I believe. I'll speak in English. Meanwhile, I'll try to add Hindustani as well. There is a very beautiful quotation. First of all, I would like to wish you all Eid Mubarak and greet you all with the Islamic greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. There is a very beautiful quotation from Henry Ford. Ford car آپ جانتے ہیں نا، اس کے مالک تھے ہنری فورڈ. انہوں نے کہا کہ coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. سب کا ایک جگہ مل جل کر رہنا یہ شروعات ہے، اور مل جل کے آگے بڑھنا یہ پروگریس ہے، آگے بڑھنا ہے، اور پھر مل جل کر کام کرنا یہ سکسس ہے. ابھی نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کا عید ملن ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور سب لوگوں کو یہاں جمع کراتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے سکسس کی جرنی آلریڈی شروع کی ہے. سو یو ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ دی جرنی آف سکسس اینڈ وش یو اے گریٹ سکسس. آج چونکہ ہم لوگ یہاں عید ملن کے لیے جمع ہوئے ہیں تو لوگوں کو تقریر سننے کا زیادہ من نہیں کرتا ہے، کیونکہ عید ملن ہے، عید پارٹی ہے. تو اس لیے میں آپ کو دو کہانی سناتا ہوں، سٹوری، ایک شروعات میں اور ایک آخر میں. فرسٹ سٹوری یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک فارمر تھے، کسان، اور ان کو کئی سالوں سے بیسٹ کراپ کے لیے فرسٹ پرائز ملتا تھا. بہترین کاشتکاری کے لیے ہمیشہ فرسٹ پرائز. کسان کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. بہت سارے بزنس مین یہاں ہوں گے لیکن کوئی بھی کسان کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کھانا کسانوں سے آتا ہے اور کسانوں سے کافی فائدہ پہنچتا ہے سوسائٹی کو. پروکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منہ الطیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ. یہ پروکتا محمد کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا اگر کوئی بیج بوئے اور پودا لگائے اور اس سے پکشی کھائے یا پرانی کھائے یا انسانوں کو فائدہ پہنچے
تو وہ اس کے لیے دان کہلائے گا. یعنی کسان ہمیشہ دان کرتے ہیں کیونکہ ان سے پکشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک کسان تھے جو ہمیشہ فرسٹ پرائز ان کو ملتا تھا بہترین کاشتکاری کے لیے, بہترین جو ہے کلٹیویشنز کے لیے. تو اس لیے ایک مرتبہ لوگوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا سیکرٹ ہے کہ اتنے سالوں سے ہمیشہ فرسٹ پرائز تمہیں ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سیکرٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ بیج بونے کے لیے بہترین بیج کہاں دستیاب ہے, اس کو میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جب مجھے معلوم ہو جائے تو جتنے بھی پڑوس میں کسان ہیں ان سے بھی میرے اچھے تعلقات ہیں, میں ان سب کو فون کر کے کہتا ہوں کہ میں نے بہترین بیج کہاں سے پانا ہے یہ معلومات حاصل کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی قیمت میں لوں. اس لیے آپ سب کے لیے وہ بیج میں پروکیور کرنا چاہتا ہوں, سب کے لیے لینا چاہتا ہوں, تاکہ ایک ہی طرح کا بہترین بیج سب کے لیے رہے. اور اس کے بعد اس کو بوتا ہوں, اور اس کے بعد میں محنت کرتا ہوں, اور اللہ کا کرم ہے, ایشور کا کرم ہے کہ ہمیشہ مجھے فرسٹ پرائز ملا ہے. تو لوگ بڑے تعجب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بہترین بیج آپ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا سیلفشنس ہونا چاہیے کہ پرائز مجھے ہی ملنا ہے, تو آپ دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ وہ دوسروں کو اگر دیتے ہیں تو وہ آپ کے کمپٹیٹرز ہیں, تو آپ کے کمپٹیٹرز کو بھی اگر فرسٹ پرائز مل جائے تو اس میں تو آپ کا نقصان ہے نا. اس لیے بہترین بیج حاصل کرنے کے بعد آپ خود رکھ لیں. دوسرے سے کہا کہ جہاں سے بھی لے لیں, جو چاہے بیج بھی لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے فرسٹ پرائز کا سیکرٹ یہی ہے, اس لیے کہ یہ جو کلٹیویشن ہے اس میں جو اناج پیدا ہوتے, پیداوار ہوتی ہے اناج کی, وہ پالینیشن, پراگ سپرش جس کو کہتے ہیں, یعنی دوسرے جو کسان ہیں ان کی جو کاشتکاری ہے, ان کا جو فیلڈ ہے, وہاں سے جو پولنس آتے ہیں, پولنس پراگ کہتے ہیں اس کو, وہ پرندوں کے ذریعے سے اور مدھو مکھیوں کے ذریعے سے اور ہواؤں کے ذریعے سے وہاں سے پولن پراگ کا سپرش جب ہوتا ہے تب کہیں جا کر پیداوار ہوتی ہے. لیکن اگر وہ پولنس اچھے کوالٹی کے نہ ہوں تو خراب کوالٹی کے ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان کی پیداوار کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہترین اگر کاشتکاری کرنا ہو, بیسٹ کراپ اگر ملنا ہو, تو اس کے لیے یو ہیو ٹو انشور دیٹ دی پولنس آف دی نیبرنگ فارمس آر آف بیسٹ کوالٹی. جتنے بھی پڑوس میں کسان ہیں ان کے جو پولنس ہیں, ان کی جو کاشتکاری ہے, اور وہاں سے جو پولنس آتے ہیں, پراگ آتے ہیں, وہ اچھے کوالٹی کے ہوں, تب کہیں جا کر آپ کا کراپ بہتر ہو سکتا ہے اور آپ فرسٹ پرائز لے سکتے ہیں. تو اس کہانی کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ unless you ensure safety, quality and security of your neighbors, you cannot be achieving peace, quality and all these kind of things. نیبرہڈ میں تمام چیزیں اچھی ہونی چاہیے, تب کہیں جا کر آپ اپنی کوالٹی کو انشور کر سکتے. یہ پیغام ہمارے سوسائٹی کے لیے بھی بہت حد تک صحیح ہے. اس لیے ہمیں اپنے نیبرہڈ میں ایک ہی دھرم کے لوگ نہیں ہیں, وہاں ہندو ہیں, وہاں مسلمان ہیں, وہاں عیسائی ہیں, وہاں بدھسٹ ہیں, وہاں جو ہے جین ہیں, اور مختلف مذہب کے ماننے والے یا مذہب کے نہ ماننے والے ہوں گے. ان سب کی شانتی کو آپ انشور کریں گے, ان سب کے سمادھان کو آپ انشور کریں گے, تب کہیں جا کر ہمیں بھی سمادھان ملتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں سمادھان نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمادھان سے زندگی گزاریں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کی ایک بہترین مثال آپ کے ابھی جو جنگ چل رہا ہے, جنگ تو اسرائیل, امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہے, لیکن اس کے اثرات آپ دیکھیے, اس کا پربھاؤ ہر جگہ ہے. میں یہاں مینگلور میں اسکول میں ہوں, ہمیں دوپہر میں کھانا ملتا تھا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ کھانا ابھی نہیں دیا جائے گا آپ لوگوں کو, اس لیے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے. ابھی ایک بیپاری سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ پولی ایتھیلین, یہ جو پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس آتے ہیں, پولی ایتھیلین
वो ये जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन और जिस तरह की चीज़ें, ये सब मिडल ईस्ट से आती हैं। और उनका फ्राइट रेट इतना बढ़ गया है कि ये जो किसान पॉलीइथिलीन बैग्स इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और उसका असरात क्या हो सकता है? असरात किसान जो चीज़ें बेचता है हमारे लिए, जो फल फूल और जो खाने पीने की चीज़ें, इस सब के दाम बढ़ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी दोबारा हो जाएगी। आप देखिए कि इसका प्रभाव कितना पूरे दुनिया में हुआ है। फिलीपीन एक कंट्री है, छोटा सा आर्चिपेलागो है, आर्चिपेलागो से मतलब यह है कि बहुत सारे छोटे द्वीप हैं और उन तमाम द्वीपों को मिलाकर एक देश बनता है। इस देश में उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, इसलिए कि वहाँ तेल नहीं है, हॉर्मुज से तेल वहाँ पर पहुँचता नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप में भी मसला है, अमेरिका में भी मसला है, लेकिन जंग सिर्फ मिडल ईस्ट में है। हम ये नहीं कह सकते कि जंग चंद अरब कंट्रीज में है तो इसलिए हमें उसकी फिक्र क्यों करना है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज इंसानी समाज इतना वेल निट है कि कोई भी समाज मुतासर हो जाए तो उसके असरात, उसका प्रभाव डायरेक्टली हम पर भी होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, गोवा जैसे राज्य में जितने भी किस्म के समुदाय हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्राइस्ट हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं और मज़हब को मानने वाले और न मानने वाले हैं, इन सब के अंदर समाधान हो, तब कहीं जाकर हमारे घर में समाधान हो सकता है। और मज़हब के तालीमात को हम जब सीखने की कोशिश करेंगे तो अभी हमारे गण्य अतिथियों ने कहा कि लर्न, लाओ, ये हमारे लोगों ने कहा कि हमें सीखना चाहिए, हमें मोहब्बत करना चाहिए। तो धर्म के जो बोधन है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मज़ाहिब का जब हम मुताला करते हैं, मुख्तलिफ मतों और धर्मों को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर मत में, हर धर्म में ये कहा गया है कि सबका ख्याल रखो। मसलन हिंदुइज़्म है, जब अर्चना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने में ये एक वचन संस्कृत का हमेशा वो पढ़ते हैं, वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग खुश रहें। वो ये नहीं पढ़ते कि सिर्फ हिंदू खुश रहें, सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले खुश रहें, बल्कि वो जो पढ़ते हैं वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, तमाम लोग, यहाँ जितने भी इंसान हैं सब खुश रहें। सर्वे संतु निरामया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो बीमारियों से बचे रहें। इसलिए कि बीमारी, किसी को पड़ोस में बीमारी हो तो एक ना एक दिन आपके घर में आएगा, सबके पास आएगा। तो इसलिए तमाम लोग बीमारियों से बचे रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तमाम लोगों का शुभ हो। कोई भी अनऑस्पिशियस, अशुभ काम कहीं भी हो तो वहीं बाकी नहीं रहता, एक दिन आपके घर पे आएगा। तो इसलिए सबका शुभ हो। मखचित दुख भाग्य भवेत, और किसी को किसी तरह का दुख ना पहुंचे। दुख पहुंचेगा तो उसके असरात आप पर भी होंगे। आप देखिए कि हिंदू धर्म के इस वचन में कितना ब्रॉड माइंडेड अप्रोच इख्तियार किया गया है, कितना विकास इसके अंदर है, और कितना आप देखिए कि सबका ख्याल रखा गया है। तो इसी तरह के तालीमात हमें मिलते हैं। मसलन कुरान में कहा गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन समुदाय हो, उखरिजत लिन्नास, और तुम्हें तमाम इंसानों के खातिर उठाया गया है। मुसलमानों से कहा गया कि तुम्हें जो काम करना है, तुम्हें जो फ़ायदा पहुंचाना है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के भलाई के बारे में तुम्हें सोचना है। तामरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम्हें नेकियों का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है, नेकियों को फैलाना है और बुराइयों से इंसानी समाज को बचाना है। वो तुमिनूना बिल्लाह,
और एक ईश्वर पर ईमान ले आना है, उस पर विश्वास रखना है। तो यहाँ आप देखिए कि इससे मुराद, इसका मतलब ये है नेकियां फैलाओ, अच्छा काम करो, बुराइयों से पूरे समाज को बचाने की कोशिश करो। और फिर विश्वास को लास्ट में कहा गया, इसलिए कि विश्वास से मुराद ये है, सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना वेशभूषण, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस इसको बदलें, या मंदिर में जाएं, या मस्जिद में जाएं, या चर्च में जाएं, इतना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माशरे के साथ, समाज के साथ, उसको फुलफिल करें। तो यहाँ भी आप देखिए कि मुसलमानों से भी यही कहा गया है कि तमाम इंसानों के भलाई के बारे में भी सोचें। बाइबल में भी यही कहा गया है, लव दाई नेबर लाइक योरसेल्फ, अपने पड़ोस के लोगों से उतना ही मोहब्बत करो जितना आप आपसे मोहब्बत करते हैं। अब पड़ोस से मुराद, पड़ोस पहले का जो कॉन्सेप्ट है पड़ोस का, उसमें और आज के कॉन्सेप्ट में काफ़ी फ़र्क है। पहले पड़ोस का मतलब ये होता था कि एक घर है, उसके पड़ोस में दूसरा घर है, तो वो पड़ोसी हैं। अभी आप एक कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, अपार्टमेंट में, तो 300 घर एक ही अपार्टमेंट में है, तो सब लोग पड़ोसी हैं। आपके पास अभी व्हाट्सएप कॉल है, 1 मिनट में आप वीडियो कॉल कर सकते हो, देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो वो लोग भी आपके पड़ोसी हैं। आप एक ही मार्केट में जाते हैं और आपके पास गाड़ी, कार, बाइक वगैरह इतना है कि 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आप दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, तो वो सब आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसियों की तादाद बढ़ गई है क्योंकि हमारे ताल्लुकात, हमारा संपर्क, ये सब बदल गया है। तो इसलिए तमाम लोगों को हमें पड़ोसी समझने की ज़रूरत है और पड़ोसियों के साथ बेहतरीन हमारे संबंध हों, ये आजकल का मुतालबा है। तो हमें ये धर्मों के इन बोधनों से, इन तालीमात से, इन शिक्षाओं से हमें जो मालूम पड़ता है वो ये है कि सबका ख्याल रखें, तमाम इंसानों का ख्याल रखें। और आप देखिए कि अभी अभी हमने रमज़ान के महीने को ख़त्म किया, ये 1 महीना का फास्टिंग है, और उसके बाद हम ईद मनाते हैं। ये 1 महीना फास्टिंग करने के बाद ईद मनाते हैं, इसलिए कि इन 1 महीने के जो प्रैक्टिस है उसमें हम बहुत सारे गुण विशेषण को पाते हैं अपने अंदर बहुत सारे अच्छाइयों को पैदा करते हैं, और ये तमाम अच्छाइयाँ इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, और ये तमाम अच्छाइयाँ सोसाइटी में, इट विल एंश्योर हैप्पीनेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में खुशी हो, समाज में खुशी हो, इसको एंश्योर करने वाली गुण विशेषताएं हैं जिसको हम रमज़ान मुबारक में पाते हैं। मसलन आप देखिए कि ये फीचर जो हम हासिल करते हैं वो है गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड, इसी को तकवा कहा जाता है। फास्टिंग का मकसद क्या है? फास्टिंग का मकसद कुरान में कहा गया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने तुम्हें रोज़ा रखने को निर्बंध किया, इसलिए इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले वालों को, आप देखते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, जीसस क्राइस्ट, वहाँ भी फास्टिंग है। उससे पहले मोसेस आए, वहाँ भी फास्टिंग है। हिंदू धर्म में भी है फास्टिंग। उपवास का जो लफ्ज़ है संस्कृत लफ्ज़ है। उपवास का मतलब क्या है? वास से मुराद लिव, उपवास से मुराद लिव नियर गॉड, खुदा के करीब जिंदगी गुजारो। यानी ईश्वर जिस तरह की ज़िंदगी चाहता है, जिसमें अच्छाइयाँ हों, जिसमें बुराइयों से आप अपने आप को बचाएं, ये उपवास है। उपवास सिर्फ खाना पीना बंद करना नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजतन फी अन यदा तामहु व शराबा। One who is not refraining from speaking the truth and practicing the truth need not have to be hungry, need not have to refrain from food and drink. यानी रोज़ा रखने से मुराद ये है कि खाना पीने से बचे रहना ही नहीं है, बल्कि बुरे कामों से बचे रहें और झूठ से बचे रहें, सच बोलें, सच्चाई के मुताबिक चलें, तब कहीं जाकर आप रोज़ा रखते हैं। सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से आप अच्छाइयाँ अपने अंदर अपनाते हैं। उनमें से एक अच्छाई ये है कि गॉड कॉन्शियसनेस, हमेशा ये समझना कि अल्लाह देख रहा है, खुदा देख रहा है, और कोई ये समझकर ज़िंदगी गुजारे कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे चोरी नहीं करना है,
मुझे करप्शन नहीं करना है, मुझे दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना है और किसी को अन्याय नहीं करना है। तो ये गॉड कॉन्शियसनेस है कि खुदा देख रहा है। मुझे अमेरिका में कई जगह वॉलमार्ट में जाने का मौका मिला, बड़ा सुपरमार्केट है, और मैंने देखा कि कहीं पर कैश काउंटर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कैश काउंटर। बड़े मॉल्स में आपको खुद बिल पे करना पड़ता है, बार कोड दिखाएं और उसके बाद साइड में रखें, फिर अपने बैग में डालें और बार कोड के बाद उसका टोटलिंग आता है और उसको आप पे करें, फिर जाएं। कैश काउंटर नहीं है। हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग खरीद के चले जाते हैं, लेकिन चोरी नहीं होती है वहाँ। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि कैमरा लगे हुए हैं। चोरी कर नहीं सकते आप, कैमरा हर जगह लगे हुए हैं और सबको मालूम है कि कैमरा लगे हुए हैं। तो इसलिए वहाँ चोर भी जाए तो नहीं चुराता, इसलिए कि उसको भी मालूम है कि कैमरा लगे हुए हैं, अगर चोरी करूँ तो मेरा अंजाम सही ना होगा। लेकिन हमारी इंसानी ज़िंदगी में हम घर में रहते हैं, हम बीवी के साथ कैसे मामला करते हैं, शौहर के साथ कैसा मामला करते हैं, बच्चों के साथ कैसा मामला करते हैं, इंसानों के साथ कैसा मामला करते हैं, कमज़ोरों के साथ कैसे मामला करते हैं, इस सब को आप कैमरा नहीं लगा सकते। इसके लिए आपके अंदर एक एहसास चाहिए। वो एहसास ये कि अल्लाह का कैमरा, खुदा का कैमरा लगा हुआ है, मुझे हमेशा इंसाफ के मुताबिक चलना है। तो ये कैमरे का एहसास हो तो इंसान अच्छा आदमी बन सकता है। तो ये 1 महीने के रोज़े से इन गुण विशेषताओं को पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हमेशा ये जाने कि एक खुदा है जो देख रहा है, इसलिए मुझे अच्छा इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना है। तो आप देखिए कि इससे कितनी खुशियाँ हमारे समाज में आ सकती हैं। तो इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए ईद सेलिब्रेट किया जाता है। ईद से मतलब अरबी लफ्ज़ है, उसका मतलब ये है कि रिपीटिंग हैप्पीनेस, हर साल आता है, हर साल रिपीट होता है, और ये ईद है। और दूसरा जो गुण विशेषण है और एक है बीइंग थैंकफुल, शुक्रिया अदा करना, कृतज्ञता भाव, ये बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा खुदा के बहुत सारे एहसानात हम पर हैं, अल्लाह के बहुत सारे देन हैं। God has many blessings on us. We never care about it. अब देखिए कि मुझे याद है, मैं कोरोना के ज़माने में कुवैत में था। ये एक बहुत बड़ा मालदार आदमी बीमार पड़ा और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, और लोग उसके पास गए। बहुत बड़ा मालदार आदमी था। तो उसने कहा कि लोग मुझे मालदार कहते हैं, लेकिन आज मैंने जाना कि मालदार कौन है। मालदार वो है जो आसानी से सांस ले सकता है, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। अल्लाह खुदा ने दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फेफड़े, ये नाक, ये पूरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, उसमें से थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो आप सांस नहीं ले सकते। सांस बहुत है आपके, ऑक्सीजन तो अल्लाह ने बहुत दिया है, लेकिन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो आपसे सांस नहीं ले सकते। तो उसने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सांस नहीं ले सक रहा हूँ और कभी भी मेरी मौत वाक़ई हो सकती है। सबसे मालदार आदमी वो है जो आसानी से सांस ले सकता हो। उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई। तो आप देखिए कि अल्लाह की एक एक एहसानात को आप देखिए, एक एक ब्लेसिंग्स को देखिए। ये हवा है, ये सांस लेना, ये हज़म करना, ये सब गॉड्स ब्लेसिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एवरेज जो फास्टिंग का आवर है, ज़्यादा से ज़्यादा 22 आवर्स फास्टिंग है, कम से कम शायद 10 घंटों की फास्टिंग है। इंडिया में हम लोग यहाँ सब फास्टिंग जो करते हैं तकरीबन 15 घंटे की फास्टिंग है, और 15 घंटे आप पानी भी नहीं पीते। 15 घंटे के बाद ये घूंट पानी जब पीते हैं तो उसका टेस्ट आपको मालूम पड़ता है। आपको नॉर्मल दिनों में जब पानी पीते हैं तो उसका टेस्ट ही मालूम नहीं पड़ता और पानी के बारे में आप सोचते नहीं हैं। लेकिन 15 घंटे फास्टिंग करने के बाद एक घूंट पानी जाता है, उससे आपको जो खुशी महसूस होती है, तो वो खुशी में आप अल्लाह के उस करम को, उस ब्लेसिंग को पहचानते हैं कि अल्लाह ने मुझे पानी दिया। अगर नहीं होता देता तो क्या हालत बनती मेरी। और हम जो दुआ करते हैं, एक घूंट पानी पीने के बाद, खजूर खाने के बाद
जो दुआ है, प्रार्थना है, वो ये है कि ज़हब ज़मऊ, प्यास बुझी मेरी, वब्तल्लतिल उरूक़, मेरे नर तेज हो गए, ऑल माई नर्व्स आर एक्टिवेटेड, वसबतल अज्र इंशाअल्लाह, और अल्लाह चाहे, खुदा चाहे तो मुझे पुण्य भी मिलेगा। ये दुआ हम करते हैं। और पानी के बारे में ज़रा सोचें, मैं बहुत साल गल्फ कंट्री में रहा। सऊदी अरब में ये एक नदी भी नहीं है, नो रिवर्स इन सऊदी अरेबिया, नो रिवर इन कुवैत, नो रिवर इन बहरीन, नो रिवर इन कतर, और पानी के कुएं भी नहीं है, बहुत कम है। कहीं ना कहीं कहीं एक पानी का कुआं होगा, लेकिन पानी के कुएं पानी पीने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है उनके पास। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट बनाते हैं, यानी समंदर से पानी लेते हैं और उसको डिसैलिनेट करते हैं, यानी उसके नमक का जितना भी हिस्सा है उसको अलग करते हैं और पानी को पीने का काबिल बनाते हैं, और फिर सप्लाई करते हैं, फ्री सप्लाई करते हैं या फिर बहुत कम चार्ज के साथ सप्लाई करते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसा बहुत है। दुनिया में सबके पास पैसा नहीं है। मसलन आप इंडिया में अगर पानी के कुएं नहीं होते, नदियाँ नहीं होते, तो यहाँ पानी देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। गवर्नमेंट का काम सिर्फ पानी देना होता था। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ने इंतज़ाम किया, खुदा ने बड़ा इंतज़ाम किया। वो इंतज़ाम क्या है, बहुत बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट अल्लाह ने बनाया। और वो प्लांट क्या है, वो प्लांट ये है कि गर्मियों में समंदर से आप देखिए कि पानी इवापोरेट होकर ऊपर जाता है। जब इवापोरेट होता है वो प्रोसेस जो है वो डिसैलिनेशन है, क्योंकि समंदर का पानी नमकीन पानी है, उसको पिया नहीं जा सकता और बहुत वजनदार पानी है, लेकिन धूप की वजह से नमक उसका अलग होता है और उसको इवापोरेट होकर पानी की शक्ल में हल्का पानी ऊपर जाता है और वहाँ जाकर वो अबर बादल बनते हैं, और कुछ अरसे के बाद बादल पानी बरसाती है, और पानी बादल की बारिश की शक्ल में जब बरसती है तो न सिर्फ बारिश का पानी बल्कि पानी के जो सोते होती हैं आपके कुओं के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और काफ़ी पानी मिलता है। आप एक साल के लिए आराम से पी सकते हैं। कि इतना बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का, खुदा का, ईश्वर का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें पानी दिया। कोरोना के मौसम में अगर पानी को कोरोना आता, दुनिया के पूरे लोग मर जाते, लेकिन पानी को अल्लाह ने बाकी रखा। तो इस आप देखिए कि इतने सारे एहसानात हैं, इतने सारे अल्लाह तबारक व तआला के ब्लेसिंग्स हैं, तो हमें जानने की ज़रूरत है। रमज़ान में यही सिखाया जाता है, बी थैंकफुल एंड डेवलप थैंकफुलनेस, कृतज्ञता मनोभाव ये पैदा करें। और ये आप देखिए कि रोज़ा अगर कोई पानी पीना चाहें, कोई भी पी सकता है। एक गिलास पानी पीना या एक बोतल अपनी जेब में रखें, कहीं भी जाके एक सिप ले सकता है। लेकिन 15 या 22 घंटों का रोज़ा कोई भी एक घूंट पानी भी नहीं पीता। इसलिए नहीं पीता कि अल्लाह का हुक्म है, ईश्वर का हुक्म है, तो उसके ज़रिए से ईश्वर देख रहा है, ये मनोभाव अपने अंदर पैदा करता है। और यही मनोभाव मानवता के लिए ज़रूरी है। तो इसके ज़रिए से बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, और इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं। आजकल फिटनेस के बारे में बात करने वाले और हेल्थ के बारे में बात करने वाले कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ हाईली रिकमेंडेड। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद क्या है, एक बार आप खाना खाएं और कई घंटों तक न खाएं, फिर आप इफ्तार करें, फिर कई घंटों तक न खाएं। इस्लाम में इसी तरह का फास्टिंग है कि एक बार आप खाएं फिर 15 घंटे न खाएं। और इस्लाम में ऑप्शनल फास्टिंग है, कंपलसरी नहीं है। For example, after month of Ramadan, there is month of Shawwal. There is 6 optional fasting. And every week there is 2 optional fasting. And every month there is 3 optional fasting. यानी there are ample opportunities for fasting. लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ एक महीना रमज़ान की फास्टिंग कंपलसरी है, और उसके बाद कोई फास्टिंग कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। रमज़ान में भी एग्जम्पशन दिया गया, जो लोग नहीं कर सकते वो लोग, उन लोगों के लिए एग्जम्पशन दिया गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम फास्टिंग के जो और भी बेनिफिट्स हैं, मैनी मेडिकल बेनिफिट्स, मैनी अदर सोशल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द हंगर, अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ द अदर, अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी,
اس کے لیے فاسٹنگ بہت ضروری ہے، تو اسلام میں اس کا موقع عطا فرما دیا گیا ہے۔ اور جب آدمی فاسٹنگ کرتے ہوئے اچھائیاں اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے تو اس کے ریپل ایفیکٹس ہوتے ہیں، ریپل ایفیکٹس۔ یو نو واٹ از ریپل ایفیکٹ؟ ریپل ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے تو آپ ندی کے پاس جائیں اور یہ کنکر پھینکیں تو ندی میں لہریں اٹھتی ہیں، اور دیکھیے کہ لہریں کتنی دور جا رہی ہیں، دور دور تک جاتے رہتی ہیں لہریں۔ تو اسی طرح سے یہ ایک آدمی کوئی ایک اچھا کام کرے تو اس کے ریپل ایفیکٹس دور دور تک پہنچتے ہیں، اس کی اچھائیاں۔ ایک آدمی مسکرائے، اگر بیوی مسکرائے شوہر آفس جانے سے پہلے تو شوہر آفس جا کر بھی مسکرائے گا اور اس کا پورا دن اچھا گزرے گا اس دن۔ تو یہ اسمائلنگ از ویری کنٹیجیس، آلسو ایوری گڈنس از ویری کنٹیجیس۔ تو یہ گڈنس کا ایفیکٹ جو ہے، یہ رمضان کے مہینے میں آدمی جو اچھا بنتا ہے اس کا جو ایفیکٹ پورے دنیا میں ہوتا ہے، پورے دنیا میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ابھی میں کیرلا میں ایک صاحب نے آرٹیکل لکھا، اس کو پڑھ رہا تھا۔ عید کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ in many festivals comes in Kerala. After every festival, Onam and many other festivals, next day there will be a news. How many crores of liquor sold in Kerala? کوئی بھی فیسٹیول کے بعد liquor, how many crores of liquor. اور liquor سیل تو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن نقصان بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور بہت سارے گھروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عید بھی آیا، اس میں یہ کچھ لوگ پینے والے ہوں گے، لیکن کوئی عید پارٹی میں لکر پارٹی نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ عید میں ایک اور ایک چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ everybody has to give compulsory charity which is called فطر چیریٹی۔ فطر چیریٹی means what؟ آپ کے اس دن کے خرچے کے لیے آپ کے پاس ہے، آپ مالدار آدمی نہیں ہیں، لیکن آپ کھانا کھانے کی طاقت رکھتے ہیں اس دن، تو آپ کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہوں تو ہر ایک کی جانب سے 2.5 کلو آف گرین اور رائس اور ایکویلنٹ اماؤنٹ آف منی، اتنا آپ دان دیں نماز کو جانے سے پہلے۔ عید نماز کے لیے جو جاتے ہیں اس سے پہلے یا ایک دن پہلے، مثلاً میرے گھر میں 10 لوگ ہیں تو مجھے 25 kg آف رائس اور ایکویلنٹ اماؤنٹ دان کرنا کمپلسری، نو ایگزمپشن۔ تو کون دان کرتا ہے؟ ہر کوئی دان کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بہت غریب ہیں، تو کروڑوں روپیے کا دان ہوتا ہے۔ گوا میں کئی کروڑ روپیے کا دان ہوا ہوگا عید سے ایک دن پہلے، اور وہ دان کس کو پہنچتا ہے؟ غریب سے غریب آدمی کے لیے۔ تو اس نے کہا، اور اس کے بارے میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر کروڑوں روپیہ غریبوں تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ یہ ایک عید میں نے دیکھا جس میں کروڑوں روپیے ہر کسی کے جیب سے سب سے غریب لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، اور اس کی تشہیر نہیں ہوتی، اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا، اور لکر سیل کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو اس طرح کے فائدے پہنچتے ہیں۔ میں ابھی امریکہ گیا تھا 2 مہینہ پہلے، تو مجھے ہیوسٹن شہر جانے کا موقع ملا۔ ہیوسٹن میں نے دیکھا کہ یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور جین مندر بھی ہے، بدھ مندر بھی ہے، سب ہے ایک جگہ۔ تو اتفاق سے سب لوگ ایک جگہ تھے، اس علاقے کا کچھ نام تھا، لیکن وہاں کے میئر نے اور وہاں کی حکومت نے مل کر سب کو بلایا اور کہا کہ ہم اس کا نام بدلیں گے اور کہیں گے یونٹی کوریڈور۔ اور مسجد والوں نے کہا کہ ہمارے پاس پارکنگ کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم مندر میں جا کے پارک کرتے ہیں، اور مندر والے مسجد میں پارک کرتے ہیں، مسجد والے چرچ میں پارک کرتے ہیں، کبھی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کا نام گورنمنٹ نے بدل کر یونٹی کوریڈور کیا۔ گورنمنٹ نے کیوں بدلا؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ اکانومی کو ہے، اس کا فائدہ معاشرے کو ہے۔ اگر لوگ سب مل جل کر رہیں تو پورے شہر کے لیے فائدہ ہے۔ تو یہ مل جل کر رہنے کا جو پیغام ہے، اسی عید ملن کا پیغام ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں 2 کہانی سناؤں گا، ابھی آخری کہانی سنانے کا وقت ہے، تو میرا وقت ہو گیا ہے، تو 2 منٹ میں وہ کہانی سنا کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ یہ کہانی گوا والوں کو زیادہ سمجھ پہ آئے گی۔ یہ گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی، وہ دیکھتی تھی کہ اس کے گھر میں جب مچھلی پکاتی تھی ماں، تو اس کا سر اور دم کاٹ کے مچھلی پکاتی ہو۔ اور بچے آج کل انسٹاگرام کافی استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام میں جا کے فش فرائی ہے، تو ابھی ماڈرن ہوٹل ریسٹورنٹس میں جو ریسیپی ملتا ہے
اس میں سر بھی ہوتا ہے، دم بھی ہوتا ہے، فرائی بھی کرتے ہیں لوگ. تو اس نے کہا ماں سے اب یہ سر اور دم رکھ کے فرائی کیوں نہ کرتے؟ دیکھو اس طرح کا ہے، انسٹاگرام میں انہوں نے دکھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں میری ماں نے مجھے جو سکھایا ہے اسی کو میں فالو کر رہی ہوں. اور وہ جوائنٹ فیملی تھا، سب لوگ وہاں پر تھے. تو اس نے جا کے ماں یعنی اس کی دادی سے پوچھا کہ آپ کیوں اس کا دم اور سر الگ کر کے کیوں بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم ہے، میری ماں تمہاری پردادی وہ کرتی تھی تو میں بھی کرتے آ رہا ہوں. تو پردادی کے پاس گئی بچی اور پوچھا کہ فرائی کرنے میں سر اور دم کیوں کاٹتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا بیٹھا یہاں پر میں سناتی ہوں آپ کو. یہ ہے کہ تمہارے پردادا جب مجھے گھر میں لے آئے تھے تو اتنا بڑا نہیں تھا گھر، کافی چھوٹا گھر تھا اور چھوٹا سا کچن اور چھوٹے چھوٹے برتن. لیکن وہ زمانہ اچھا تھا کہ مچھلیاں بڑی بڑی ملتی تھی. اب چھوٹے برتن میں بڑی مچھلی کو کیسے فرائی کرے، اس لیے میں سر بھی کاٹتی تھی اور دم بھی کاٹتی تھی اور فرائی کرتی تھی. اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہا. آج ہم جو ٹریڈیشنز دیکھتے ہیں وہ سب اسی طرح سے چل رہے ہیں. کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں کیا پیغام ہے، اس کو اپنانا ہے کہ نہیں اپنانا ہے، اس میں کوئی تبدیلی لانا ہے کہ نہیں تبدیلی لانا ہے. تو یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری گزارش یہی ہے کہ جسٹ بلائنڈ فالوئنگ آف ٹریڈیشن will lead you nowhere. تھوڑا سا بچی کی طرح وہ انکوزٹ مائنڈ جس کو ہم ذرا بڑا ہونے کے بعد ختم کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ زندہ کرو. پوچھو کہ یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمارے دادا کرتے ہیں پردادا کرتے ہیں تو اسی ٹریڈیشن کو فالو کرو. ضروری نہیں ہے، سیکھو، لرن. ہمارے اتیتھی مہودے نے کہا کہ لرن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہر مذہب کی اچھی تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرو اور اچھی چیزوں کو اپناؤ اور بری چیزوں کو چھوڑو. اسی میں ہم سب کا خوشی ہے. اور thank you all for inviting me and thank you very much and see you again next time.